Hello friends, good morning. Once again, I welcome you to my class of 10th Standard English. And today we are going to discuss the second chapter of our textbook, First Flight. As you can see, the title of the second chapter of First Flight is, it's written on the board, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And this lesson has been written by Nelson Mandela. Okay, so let me just give you the brief introduction of Nelson Mandela before we proceed further with this lesson. Nelson Mandela was a political leader, a socialist, a kind of a freedom fighter from South Africa. And just as we keep on giving examples of Mahatma Gandhi in our nation, who had immensely contributed himself in fighting against the British rule. Okay. Similarly, there was a British rule in South Africa also, and he fought against the British rule for so many number of years. However, his freedom fight or his fight against the British rule was totally different than what it was from Mahatma Gandhi. Because apart from fighting against the British rule, he was also fighting against the racial discrimination. Okay, racial discrimination का मतलब होता है कि स्किन कलर को ध्यान में रखते हुए जो भेदभाव रखा जाता है कम्युनिटीज के बीच में, उसी को हम बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये एक मेजर इम्पैक्ट था, ये एक मेजर क्राइटेरिया था उनके फाइट का. Okay, white rules के खिलाफ. And in another way his fight was very different. कि लगातार 28 years तक उनको जेल में रखा गया था. So from a very young age till he grew old, okay, he was continuously for 28 years he was kept in a dungeon, a kind of a cellar or in a jail. ठीक है. और उसके बाद जब वहां पे वाइट रूल खत्म हुआ, उसके साथ साथ उनको रिलीज भी किया गया था, राइट. एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज he was made the president of African National Congress, which was a political party of South Africa. उनके प्रेसिडेंट उनको बनाया गया. And then he holds the credit of being the first black president of South Africa. Okay, यानी साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला. And he served his nation as a president of South Africa from 1994 to 1999. Okay, यानी 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे थे और साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट. As far as his life tenure is concerned, as you can see on the board, okay, he was born in 1918 and he died about 7 years ago, 2013. यानी उनका जो जीवन काल है वो काफी लंबा रहा है, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा है. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सामने लड़ने के लिए ही उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ लाइफ जो है वो अपना कुर्बान कर दिया था. ठीक है. तो ये उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेल्सन मंडेला का. और ये लेसन जो है, इट इज बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है, उसमें से ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है. और बेसिकली व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, okay, on 10th of May 1994, there was an oath-taking ceremony in Pretoria. Pretoria is the capital city of South Africa. तो oath-taking ceremony के दौरान वहाँ पे बहुत बड़ा सा जो जन समुदाय था, ठीक है, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने जो सारी बातें बताई थी, वो सारी बातें उनकी ऑटोबायोग्राफी में इंक्लूड की गई है. And that particular speech has been combined together in this particular lesson. ठीक है. यानी
बहुत डिटेल में उनके ऑटोबायोग्राफी में के बारे में हमें इस लेसन में नहीं पढ़ना है, लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सारे देशों में से जो डिग्निटरीज आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही बड़ा ओकेजन था कि ब्रिटिश रूल से तो उनको आज़ादी मिला ही था, प्लस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भी उनका आज़ादी मिला था। दिस वाज अ रिमार्केबल पॉइंट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका a black man was made the president of South Africa। इसलिए उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था, 10th of May 1994। And on that occasion he had invited the dignitaries, the presidents, the prime minister, the vice presidents or prime ministers, उनको सारे कंट्रीज में से उन्होंने इनवाइट किया था। इंडिया से भी डिग्निटरीज जो है वो वहाँ पे गए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए प्रिटोरिया में। तो उस ओकेजन में उन्होंने, और साथ में साउथ अफ्रीका के हजारों लोग भी वहां पे मौजूद थे, तो इस ओकेजन पर उन्होंने जो भी कहा था लोगों को, ठीक है, वो सारी बातें जो है उसका एक समरी जो है, यही है हमारा ये सेकेंड लेसन। ओके, इस लेसन का जो डिटेल में डिस्कशन जो है उसका एनालिसिस हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इस लेसन में क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लेसन टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, इसलिए मैं इस लेक्चर में आपको इस लेसन से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो सारे वर्ड्स नए हैं शायद आपके लिए, उनको मैं ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो I would request you to note down these words in your notebooks as well। ठीक है, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ड्स को, वर्ड मीनिंग्स को या वोकैबुलरी को सीखने का बेस्ट तरीका वही होता है कि एक बार मीनिंग उसका जानने के बाद उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करना चाहिए, तो हम उसका मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। ओके, सो मैं आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग अब जो है लिखा है उसको बता रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा जिसमें ये सारे वर्ड्स मैं यूज करूंगा। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। देयर आर अराउंड 25 वर्ड्स रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड द फर्स्ट इज apartheid। I think I told you the meaning of this word already। Apartheid means racial discrimination। Okay, Nelson Mandela fought against the British rule in terms of apartheid successfully, right? This is a kind of example we can use, you know, in the context of this list। उसके लिए दूसरा word यानी कि उसका meaning जो है racial discrimination है। Okay, and then the second word is inauguration। ये word शायद आपने सुना ही होगा। Okay, हिंदी में या गुजराती में उसको कहते हैं उद्घाटन। किसी यानी कोई भी चीज का जो शुरुआत हम करते हैं उसको हम कोई पर्टिकुलर सेरेमनी होता है या कोई इवेंट होता है, ओके, उसकी शुरुआत जो करते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इनॉग्रेशन। सो इनॉग्रेशन स्टैंड्स फॉर ओपनिंग सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिग्निटरीज। ये वर्ड भी हम ऑलरेडी मींस उसका मीनिंग मैं बता चुका हूं कि डिग्निटरी मींस पीपल ऑफ हाई रैंक। जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, हाई रैंक के सोशल वर्कर्स होते हैं, ओके, बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, हॉलीवुड स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत ही नेम और फेम कमा चुके हैं, वैसे लोग, उनको इंग्लिश में एक वर्ड में डिग्निटरीज कहा जाता है। ओके, the next word is pledged। it's a verb, pledged। in the context of the lesson the word is used in the past tense, इसलिए मैंने उसको past tense में लिखा है। ओके, पीछे डी लगाने से वो past tense हो जाता है। took oath यानी प्रतिज्ञा ली। ओके, so Nelson Mandela pledged as the president of South Africa। That way we can use that word in our exam, right? Uphold stands for support। ओके, खास करके किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को
या तो किसी के ओपिनियन को सपोर्ट करना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं अपहोल्ड। किसी का डिसीजन सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी हम यही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अपहोल्ड। ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। फॉर एग्जांपल, द सुप्रीम कोर्ट upheld the decision of the high court। मीनिंग उसका है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को मान्य रखा, यानी उसी को सपोर्ट किया और यानी सजेस्ट किया कि इसी डिसीजन को हम जारी रखेंगे। So that way we can use this word. Okay, next word is confer. Confer means to give. Okay, यानी यहाँ पे कोई सॉलिड चीज को देने की बात नहीं है। किसी को कोई अवार्ड देना है या तो कोई टाइटल देना है, राइट? तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम ये वर्ड जनरली इस्तेमाल करते हैं। ओके, कॉन्फर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ही वॉज कॉन्फर्ड विथ भारत रत्न। तो ऑब्वियसली एक टाइटल या तो कोई अवार्ड यहाँ पे देने की बात है, ठीक है? तो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्फर वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। आउटलॉज मीन्स लॉब्रेकर्स। जनरली वी यूज दिस वर्ड फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स। जो कायदे कानून को तोड़ते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं, उनके लिए हम ये आउटलॉज वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, सो पुलिस has decided to take strict action against the outlaws in this area. This is a kind of practical example we can use that includes this word. Then potential means capacity. हिंदी में उसको या गुजराती में हम उसको क्षमता बोलते हैं, क्षमता, कैपेसिटी, पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, he has a good potential of becoming a successful politician। यानी उसमें एक सफल पॉलिटिशियन बनने की एक क्षमता है। Is capable of becoming a politician। That way, that's an example. Next one is secrecy, means privacy. Okay. For example, she likes to live in secrecy. She likes to live in a privacy. So both are synonym words to each other. ठीक है, उसको अकेलेपन में रहना जो है, अकेले में रहना जो है वो पसंद है। That's a practical example for you. Grimmest, most depressing. ओके, यानी कि सबसे खराब, सबसे ज्यादा दुख देने वाला, अगर कोई खास करके कोई घटना के बारे में हमें बताना है तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ग्रिमेस्ट। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, communal riots after independence is one of the grimmest chapters of Indian history। ओके, तो ये एक एग्जांपल मेरी ओर से आपको है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये सारे जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, वैसे ही एग्जांपल आप भी अपने दिमाग में बनाएं, हो सके तो अपनी नोटबुक्स में भी लिखें। ओके, एंड इट्स द बेस्ट वे टू लर्न द वोकैबुलरी। ओके, once again telling you the same thing as I told you earlier. Then after, obligation means commitments। obligation यानी commitment होता है। ओके, यानी कुछ करने का जो हम वचन देते हैं, या तो खुद को देते हैं या तो सामने वाले को, तो ऑब्वियसली इट इज नोन एज ऑब्लिगेशन या तो फिर कमिटमेंट, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल, ईच पर्सन हैज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली और हर फैमिली, राइट? सो दैट्स an example you can give, a real life example you can give that uses this word. उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे privilege means special right। okay, due to a certain reason, अगर आपको कोई special right मिलता है तो उसको एक वर्ड में हम privilege कह सकते हैं। Let's say for example, senior citizens in India enjoy certain privileges from the government। okay, senior citizen जो है भारत के, वो गवर्नमेंट की ओर से उनको कुछ privileges मिलते हैं। It's an example। distinguished, honored। distinguished का मतलब होता है honored, जो सम्मान देने लायक होता है, जो माननीय होता है,
उसको हम डिस्टिंग्विश्ड बोलते हैं. There were so many distinguished personalities present on the occasion. There were so many distinguished personalities present on the oath-taking ceremony. These are the kind of examples we can use. Okay, इस word के लिए. Next one is emancipation, freedom from restrictions. जो बंधनों से आजादी मिलती है उसके लिए ये particular word हम use करते हैं emancipation. Okay, so South Africa was emancipated from the white rule. Okay, towards the end of the 20th century. Kind of example, such kind of example we can use that combines this word in a sentence. Deprivation means not having basic necessities. Deprivation एक noun है और उस conceptual understanding के लिए उसको यूज किया जाता है कि कोई इंसान ऐसा है या तो कोई कम्युनिटी ऐसी है जो बेसिक नेसेसिटीज से वंचित है, यानी उनको जो बेसिक नेसेसिटीज दूसरों को मिलता है वो उनको नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन को हम डिप्रिवेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी पुअर पीपल who are deprived from the basic necessities like health services and education and public transport. Okay, तो इसका मतलब ये है कि काफी गरीब लोग ऐसे हैं हमारे देश में, ठीक है, जिनको बेसिक नेसेसिटीज जो है वो उसका फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी. प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक्यूरेसी यानी बिना कोई गलती के कोई काम को करना, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, प्रिसीजन भी उसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल, he solved all the sums with great precision. यानी एक एक चीज का ध्यान रखते हुए बिना कोई गलती किए उसने सारे सम्स को सॉल्व कर दिए. That's an example. Despised means hated. Once again, this word is used as a verb. Okay? There are some minorities in India which are despised. Okay? यानी कि कुछ माइनॉरिटीज ऐसी है, ठीक है, जिनसे नफरत की जाती है. एक सिर्फ एग्जाम्पल है ये. It's not the kind of fact that I'm conveying it to you, but that's the way we can use that, word. Profound, deep. Profound word का meaning होता है deep. Okay, so किसी घटना का बहुत ही गहरा असर किसी के दिमाग पर पड़ता है, ठीक है, तो खास करके ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड जो है प्रोफाउंड हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर हस्बैंड्स डेथ हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर माइंड. ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल के उसकी हस्बैंड का डेथ हुआ, उसका बहुत ही डीप, उसका बहुत ही गहरा असर उसके दिमाग पर पड़ा है. Then comes brutality, means cruelty. Okay, जो निर्दयता दिखाई जाती है, अत्याचार किया जाता है. Okay, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, brutality. Okay, let's say for example, we cannot bear any brutality from anti-social people. ठीक है, यानी कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनकी ओर से हम ऐसी निर्दयता या तो ब्रुटैलिटी या तो अत्याचार, अन्याय हम सह नहीं सकते. नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मींस केप्ट अपार्ट. आजकल आप ये वर्ड काफी सुनते होंगे. ओके, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस डिसीज he was isolated for 2 weeks. A very, very real life practical example for you. Rebellion means revolution.
जिसको एक वर्ड में हम कह सकते हैं क्रांति। कोई भी गलत रूल हो मीन्स चल रहा है, या तो गलत डिसीजन अगर कोई लिया गया तो उसके खिलाफ जो हम आवाज उठाते हैं, ओके, दैट इज नोन एज रेबेलियन और रेवोल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल the rebellion of 1957 is one of the brightest chapters of Indian history. Then comes obstructive. Obstructive means restricting. Okay, कुछ होने से रोकना, और या तो फिर कोई रास्ता रोकना, या तो रेलवे ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन में हम बाधा जो डालते हैं, उस टाइप का जो सिचुएशन होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल द रोड वाज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सो मेनी यंग स्टूडेंट्स। ओके, तो काफी यंग स्टूडेंट्स के द्वारा रोड को ब्लॉक किया गया या तो ऑब्स्ट्रक्ट किया गया ताकि वहां से लोग आ ना जा सके। अटर्नी मींस लॉयर, जो वकील होता है उसको इंग्लिश में अटर्नी भी कहते हैं, लॉयर भी कहते हैं। हालांकि ये वर्ड हमारे इंडिया में, हमारे देश में काफी कम यूज होता है, बट इन वेस्टर्न कल्चर, इन सो मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, इंस्टेड ऑफ लॉयर दे प्रेफर टू यूज द वर्ड अटर्नी। देन कम्स वर्चुअस। वर्चुअस यानी गुड या तो एथिकल, एथिक्स के हिसाब से, मोरालिटी के हिसाब से जो अच्छा होता है उसको हम वर्चुअस बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ही इज नोन टू टेक वर्चुअस डिसीजंस। ओके, यानी कि मोरालिटी के हिसाब से अच्छे डिसीजन लेने के लिए वो जाना रहता है। एंड द लास्ट वर्ड इज प्रेजुडिस एंड अनरीजनेबल डिसलाइक। प्रेजुडिस का मतलब होता है बिना कोई वजह किसी को नफरत करना, उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि बिना कोई वजह या बिना कोई रीजन से सामने वाले को नफरत करते हैं। पहले से उनके दिमाग में, पहले से उनके बारे में वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं, ठीक है, कि ये खराब इंसान है, ऐसा कुछ जो होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं प्रेजुडिस। ओके, तो ऐसा अगर हमारे ध्यान में आता है तो ऑब्वियसली we can make an appeal to the opposite person. Please don't keep any prejudice against us. Right? So that's the kind of brief explanation of the vocabulary related to this lesson. Okay? Second lesson जो है हमारा फर्स्ट लाइन का, उससे रिलेटेड ये vocabulary था। आपको नोटबुक में लिख लेना है, और अब आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में हम ये लेसन का जो है वो डिस्कशन करेंगे।